નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। દોસ્તો, જે વિડીયો બતાવવાનો છું એ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો। આજકાલના યુવાનો સૌથી વધારે પોતાનો સમય ક્યાં પસાર કરે છે, એની પાછળનું મુખ્ય કારણ શું છે, એ તમામ વાત મારે તમને શર્માજીના મોઢે સંભળાવી છે। જે રીતે શર્માજીએ વાત કરી છે ત્યારે ભારત દેશની અંદર આપણે જોઈએ તો ઘણી બધી પરીક્ષાઓના પેપરો ફૂટી જાય છે। આ સિલસિલો છેલ્લા 4-5 વર્ષથી ચાલુ થયો છે। એક્ઝામ સમયે બરોબર જ્યારે એક્ઝામ લેવાનો દિવસ હોય ત્યારે એમના જ આગલા દિવસે પેપર ફૂટી જાય છે, લાખો રૂપિયામાં પેપર વેચાઈ જાય છે। જે યુવાને તનતોડ મહેનત કરી હોય, રાત દિવસ પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરી હોય, ત્યાર પછી પેપર ફૂટી જાય છે। કેટલા હતાશ થઈ જાય છે આ લોકો, એનો સરકારને કોઈ જાતની એની ચિંતા નથી। અને જે રીતે વાયદા કર્યા હતા કે દર વર્ષે 2 કરોડ યુવાનોને નોકરી આપવામાં આવશે, સરકાર આ વાયદો પોતાનો નિભાવવામાં એકદમ નિષ્ફળ ગઈ છે। ત્યારે યુપીની અંદર એક વાત કરીએ, ખૂબ મોટી મોટી વાતો તો કરે છે કે યુપીની અંદર ખૂબ વિકાસ કર્યો છે યોગી બાબાએ। હમણાંનો જ એક દાખલો છે, એક યુવાને ખૂબ મહેનત કરી, રાત દિવસ પરીક્ષા આપી, પાસ થયો, ડિગ્રીઓ મળી, નોકરી માટે કેટલો સમય રખડ્યો એ યુવાન સરકારી નોકરી માટે। અંતે એ યુવાનને સરકારી નોકરી નથી મળતી અને એ યુવાન આત્મહત્યા કરી લે છે। વિચાર કરો તમે, આ યુપીનો વિકાસ છે। હું તો દરેક યુવાનોને કહેવા માંગુ છું કે જે લોકોને સરકારી નોકરી નથી મળતી એ લોકો તમે આત્મહત્યા ક્યારેય ન કરો, કારણ કે તમારા માતા પિતાનું વિચારો। તમે આ સરકારના ભરોસે જો તમે પરીક્ષા આપશો તો સરકારના ભરોસે તમે ક્યારેય પરીક્ષા આપતા નહીં, કારણ કે તમારી અંદર જો પ્રાઇવેટ કંપનીમાં નોકરી કરવાની તાકાત હોય, ટેલેન્ટ હોય તો જ પરીક્ષા આપજો, એક્ઝામ આપજો। બાકી આ સરકારના ભરોસે તમે એક્ઝામ આપશો તો તમારે અંતે હતાશ થવું પડશે। ત્યારે જે રીતે શર્માજીએ વાત કરી છે, ખૂબ સમજવા જેવી વાત કરી છે। આજકાલના યુવાનો માટે આ વિડીયો ખૂબ અગત્યનો છે, એટલે હું દરેક લોકોને કહું છું કે વિડીયો એટલો શેર કરજો કે દરેક યુવાનો સુધી પહોંચી શકે। અને જો તમારા ઘરમાં કોઈ યુવાન ભણતો હોય તો એમને પણ આ વિડીયો બતાવજો। જે રીતે વાત કરી છે ખૂબ સમજવા જેવી વાત છે દોસ્તો। થોડો સમય કાઢીને આ વિડીયો સાંભળી લેજો। એ વિડીયોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ખુલાસાઓ કર્યા છે શર્માજીએ, સાંભળીને તમે પણ ચોંકી ઉઠશો। युवा जो बेरोजगार है उस पर सरकार का ध्यान है। युवा नशेड़ी बनता जा रहा है, मोबाइल के नशे में धुत है, तो वहीं सड़कों पर नाचता दिखता है या फिर वक्त बर्बाद करता दिखता है। यही बयान को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेती हूँ कि क्या कुछ कहना है युवाओं को लेकर, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ी आबादी युवाओं की है और अगर युवा फोन पर समय बर्बाद कर रहा है तो फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि रोजगार का मुद्दा कहाँ दिखाई दे। वही चीज है ना, जब उन्हें रोजगार मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें छूट जाएंगी ना। मैंने अभी अपने घर का उदाहरण दिया, इसी तरह से और दूसरे घरों पे भी उदाहरण लागू होता है कि जब आपके पास काम होगा, जब आपके पास काम करने के लिए रोजगार होगा, आप सुबह से कम 8 घंटे की ड्यूटी हर जगह होती ही होती है। आप 8 घंटे की ड्यूटी करने के लिए 1-1.5 घंटा पहले घर से निकलोगे और 1-1.5 घंटे बाद घुसोगे, यानी कम से कम आपके दिन के 12 घंटे आपके बिजी हो गए। जब 12 घंटे बिजी होने के बाद घर में कोई आदमी घुसता है और 10-15-20 मिनट वो मोबाइल चला लेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब सुबह काम नहीं है बेचारे के पास, पढ़ लिख के वो खाली घूम रहा है, पेपर भरे जा रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम होता नहीं है, साल 2-2 साल बेरोजगारी खिंचती चली जा रही है, तो क्या करेगा वो बेचारा? मोबाइल ही देखेगा। जियो और इन्होंने सबने पहली आदत खराब कर दी है, फ्री दे के, डाटा फ्री दे के, जिसका जो आज दूरगामी परिणाम देखने को मिल रहा है जी। लेकिन सर 10 साल की सरकार, डबल इंजन सरकार जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी अब बेमिसाल है, उसमें युवा की स्थिति आप क्या देखते हैं? युवा की स्थिति शोचनीय है, दयनीय है। यूपी का ही उदाहरण मैं देता हूँ। अभी 60,000 वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, फॉर्म कितने भरे गए? 50 लाख से ऊपर फॉर्म गए। 48 लाख लोगों को एडमिट कार्ड जारी हुआ, यानी कि हर 100 में से मात्र 1 युवा नौकरी पा पाएगा। आप एक तरफ कहते हैं हम रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, हम 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दे रहे हैं। इसके नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है? हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है।
दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप रेशो देखो कि 100 में से मात्र एक बंदे को नौकरी मिलेगी, और वो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी अभी कंफर्म नहीं है। लगातार उठ रहा है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया फिर भी है। हाँ, खबरें सामने आ रही है कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, युवा तैयारी कर आ रहा है, पेपर लीक हताशा में कैसे देखते हैं? हताशा है उसकी, और क्या परेशानी है। जब पेपर लीक हो जाएगा फिर वही प्रोसीजर सेम चालू होगा 1 साल के लिए। अब सपोज इसी पेपर को हम मानते हैं कि लीक हो गया है पेपर, अभी का बार बार सरकार की तरफ से मना करा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार लास्ट एंड फाइनल मानेगी इस चीज़ को। उसके बाद फिर से नए प्रोसीजर शुरू होगा, फिर नया एडमिट कार्ड जारी होगा, यानी पूरी भर्ती 1 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गई। जो नौकरी आज मिलनी चाहिए थी वो नौकरी 1 साल बाद मिलेगी। जिन लोगों ने इस साल भर दिया बाय द वे वो किसी वजह से रह जाते तो अगले साल वो ओवरेज हो जाएंगे। जब वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे होंगे, अगले साल ओवरेज हो गए, वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो इनका तो सीधा सीधा तरीका, पेपर कराओ, लीक कराओ और उसके बाद छुट्टी करा दो। एस्पायरेंट्स जो है अभ्यर्थी सारे ओवरेज हो जाएंगे और छुट्टी। यूपी के अंदर ही सर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक के मामले को लेकर। दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि युवाओं ने ठान लिया इस बार 80 में से 80 यूपी के अंदर और 400 प्लस पार लगा देंगे अब बीजेपी। वो युवाओं ने नहीं ठाना, वो उन्होंने मोदी जी ने ठाना है और उनकी टीम ने ठाना है। ईवीएम वालों को डायरेक्शन दे दी गई है, केंद्रीय चुनाव आयोग को डायरेक्शन दे दी गई है, हमें 370 चाहिए प्लस 30 हमारे सहयोगियों के चाहिए। कैसे लाओगे ये हमें नहीं पता, आप जानो, आपका काम जाने। ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, हम फिर से इस बात को सवाल को उठा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, अपनी गाड़ियां चारों तरफ चला रखी हैं। इलेक्शन कमीशन ने दिखा रखा है कि दिखाने के लिए कि नहीं हमारी ईवीएम साफ सुथरी है, लेकिन वहीं जब हमारे वकील भानु प्रताप सिंह जी मांगते हैं कि हमें 50 ईवीएम दे दो तो वो देने को तैयार नहीं होते। आप पाक साफ हो तो दो। तो ये टोटल गारंटी तो सिर्फ ईवीएम बेस्ड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, टोटल ईवीएम गारंटी बेस्ड है। ये जो नहीं वोट युवा जो बार बार खबरें आती है पेपर लीक मामले की, आखिर पेपर लीक हो कैसे जाता है? पेपर लीक सरकार की तरफ से होता है जी। पेपर मैं तो नहीं छाप रहा, ना मैं पेपर बनाने की कमेटी में, ना मैं पेपर छाप रहा। सरकारी प्रेस में पेपर छपते हैं, फुल सिक्योरिटी में पेपर छपते हैं और कम से कम 8 सेट पेपरों के तैयार होते हैं। जो मेरी जानकारी में 8 सेट पेपर बनते हैं, अलग अलग जगहों पे वो छपते हैं और उसके बाद फाइनल एक डिसीजन होता है कि ये वाला पेपर जो है रखा जाएगा। और उसमें भी 4-4 सेट होते हैं, ABCD। ए यहाँ बैठेगा तो उसके पीछे B बैठेगा और उसके साथ में बैठेगा तो D बैठेगा, जिनमें आपस में कोई नकल नहीं होता। उनका जो सीरियल होता है वो चेंज कर दिया जाता है। एक कमरे में 24 बच्चे बैठते हैं नकल रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है। तो सरकारी तौर पर तो लीक हो रहा है। मेरी क्या इतनी हिम्मत है कि मैं सरकारी प्रेस में जाके पेपर लीक करा दूँ? नहीं करा सकता। ऑटोमेटिकली ऊपर खाने से अंदर खाने से ही काम होते हैं, और वो होते इसीलिए कि इस साल का पेपर लीक हो गया, ये साल तो गया आपका, अब ये पूरा 24 गया इस पेपर के चक्कर में। अभी डिसीजन होगा, फिर कमेटी बैठेगी, फिर वो दाखिल होगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, हाँ जी पेपर लीक हुआ था, इसको कैंसिल करा जाए, अगले पेपर की तैयारी शुरू करो। फिर नए सिरे से 48 लाख लोगों को रोल नंबर इशू रहेंगे। उसमें से 48 लाख में से कम 25% जो है वो ओवरेज हो चुके होंगे अगले साल तक जाके। આપણે શર્માજીને તો વધુમાં વધુ લોકો સુધી આ વિડીયો પહોંચાડો, જેથી કરીને લોકોને ખ્યાલ આવે કે સરકારે આપણા માટે શું કર્યું છે।